Now, what is exactly anticipatory bail? एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है बेल इन एंटीसिपेशन और एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। यहां बेसिकली होता क्या है, आप कोर्ट के पास जाते हो और आप कोर्ट को कन्विंस करते हो कि किसी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ एक झूठा केस डाल दिया है या कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ एक झूठा केस डालने वाला है, एंड यू आर अफ्रेड दैट यू आर गोइंग टू बी अरेस्टेड। सो कोई व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठा केस डाल दिया है या कोई व्यक्ति झूठा केस डालने वाला है, and you are afraid that you are going to be arrested in this false case and you are going to be implicated and your life is going to become troublesome and you are going to go to jail. In such a situation, the court can be approached for the grant of anticipatory bail. That means you can approach the court and convince that some case has been filed against me, I have not done anything, so please grant me anticipatory bail. And what is the effect of anticipatory bail? The court listens to your arguments, and then if the court grants you anticipatory bail, it is basically that if the police comes to arrest you, the moment they come to arrest you, you can say that you have already been granted anticipatory bail, so they will have to immediately release you. I repeat, if the police comes to arrest you, effectively even a non-bailable offense becomes a bailable offense, and automatically the police will have to release you if you have been granted anticipatory bail. सवाल यह उठता है कि क्या एफआईआर का फाइल होना जरूरी है एंटीसिपेटरी बेल के लिए? द आंसर इज नो. Even if you have an apprehension that somebody is going to file an FIR which is false, somebody is going to falsely implicate you in a case, then also you can go to the court and ask for anticipatory bail. दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या अरेस्ट होना जरूरी है to get anticipatory bail? Yes or no? तो क्या अरेस्ट होने के बाद एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी? ऑलवेज रिमेंबर, एंटीसिपेटरी बेल इज इन एंटीसिपेशन, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट की मेरा अरेस्ट होगा या होने वाला है या हो सकता है. इट इज प्री अरेस्ट बेल. ये वो बेल है जो अरेस्ट होने के पहले ही मिल जाती है. इट इज प्री अरेस्ट बेल. Once you are arrested, you can never file for anticipatory bail. You can only file for regular bail. Wonderful. आप anticipatory bail के लिए नहीं फाइल कर सकते. You can only file for regular bail once you are arrested. But remember, हमने अभी अभी कहा कि FIR का भी फाइल होना जरूरी नहीं है. हमने अभी भी कहा कि प्रोसीडिंग्स का भी फाइल होना जरूरी नहीं है. हमने कहा कि अरेस्ट अगर नहीं हुए हो और अगर एप्रीहेंशन है कि आप अरेस्ट होने वाले हो तो आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हो. सो लेट अस ऑल गो टुडे इन द कोर्ट एंड फाइल फॉर एंटीसिपेटरी बेल. हम सारे चलते हैं कोर्ट में और एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल करते हैं और एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर को लैमिनेट करा के अपने पास रखेंगे. आगे जाके कभी कुछ करा अगर बाई चांस तो सीधा एंटीसिपेटरी बेल दिखा दो कि हेलो देखो नहीं अरेस्ट कर सकते. This anticipation or apprehension, this anticipation or apprehension has to be reasoned. It cannot be mere fear or anxiety that you are going to be arrested. तो आप अगर जाओ और सोचो कि कोई मुझे अरेस्ट कर, मान लो पड़ोसी हैं आपके, पड़ोसी अगर बाई चांस 2-4 बारी आपको घूर घूर के देखे और आपको अब डर लग रहा है कि भाई साहब ये तो मेरे खिलाफ केस ही ना कर दे. किसका मुझे नहीं पता, आपने करा क्या है, कुछ नहीं करा, पर आप सीधा सीधा ये सोच रहे हो कि ये यार मेरे खिलाफ केस ही ना कर दे, फटाफट से एंटीसिपेटरी बेल ले आता हूं. दिस इज योर एंजाइटी, योर स्पेकुलेशन, योर फियर. इट कैनॉट बी मियर फियर और एंजाइटी.
that cannot be a ground for anticipatory bail. It has to be reasoned that police has informed you, police has called you to the police station once, you have received credible information from your sources, you have received a copy of a complaint which has been given to the police officer which might later be registered as an FIR. आपको मेरी बात समझ आ रही है? You have received a threatening email or a text message, somebody is threatening you to implicate you in a false case. आजकल बहुत चलता है ना ये सब. तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू कैन गो एंड फाइल फॉर एंटिसिपेटरी बेल बिकॉज नाउ योर एप्रीहेंशन इज रीजनड. It has some sufficient reason, a reasonable ground behind your fear that you are going to be arrested. It cannot be mere fear or anxiety कि आपको अरेस्ट करा जाने वाला है. Sorry, that cannot be a ground for anticipatory bail. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes or no? Any confusion still now? Any doubts? अच्छा, अब एंटिसिपेटरी बेल फाइल करने के लिए किस कोर्ट में जा सकते हो? It is generally, you have not read the provision, I am just asking for general information. It is the court of session or the high court. Should they have jurisdiction? Bail can be granted by non-jurisdictional court. हाँ, आप मैंने क्या समझाया था, याद करो और बताओ जल्दी से याद करो मैंने क्या समझाया था. हाँ, एंटीसिपेटरी बेल की ही बात हो रही है. तो मान लीजिए आप यहां पर हैं, आपके खिलाफ इस पर्टिकुलर स्टेट में या इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आपके खिलाफ आपको लग रहा है प्रोसीडिंग शुरू होने वाली है. ये रहा कोर्ट ऑफ सेशन और ये रहा पूरी स्टेट का हाई कोर्ट. तो क्या आप बराबर की स्टेट के कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के पास जा सकते हो टू फाइल फॉर एंटीसिपेटरी बेल? यस और नो? यस. अभी नो कह रहे थे, अभी यस कह रहे हो. जजमेंट याद आ गया? अरे सेक्शन ही कह रहा है. मतलब हाँ, तो ठीक ही तो कह रहे थे, तभी तो कह रहा हूं याद करो क्या पढ़ाया था. एंटिसिपेटरी बेल, यही तो कह रहे थे ना कि जुरिस्डिक्शन की जरूरत नहीं है. हाँ, तो सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो. यू डोंट नीड एनी जुरिस्डिक्शन टू फाइल फॉर एंटिसिपेटरी बेल. आपको किसी भी जुरिस्डिक्शन की जरूरत नहीं है. यू कैन फाइल फॉर एंटिसिपेटरी बेल इन एनी प्लेस. That means even if it is the high court of a neighboring state or any other state, you can file for anticipatory bail there. Why? Because obvious सी बात है, आपको ये एप्रीहेंशन है, आप बैंगलोर में बैठे हो उस टाइम पे या आप राजस्थान में बैठे हो उस टाइम पे, आपको ये लग रहा है कि दिल्ली में आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू होने वाली है, तो आप दिल्ली एंटिसिपेटरी बेल लेकर घुसो, ये बेटर है ना, ताकि कोई अरेस्ट ना करे आपको. तो आप राजस्थान में किसी कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के पास जा सकते हो टू गेट एंटिसिपेटरी बेल एंड देन यू अप्रोच दिल्ली एंड गो बैक टू योर होम. क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस और नो? सम बेसिक पॉइंट्स आर क्लियर हो रहा है? यस और नो? 482. मैं यही पूछ रहा था कि रीजन क्या बताया था मैंने कि नॉन ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट्स के पास भी बेल ग्रांट करने की पावर क्यों है? बिकॉज इट इज इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट. सो इफ यू आर गोइंग टू बी अरेस्टेड, इट इज बेटर दैट यू गेट एंटिसिपेटरी बेल एंड प्रोसीड टू दैट प्लेस ना. हाँ, yes, very good. 482. Direction for grant of bail to person apprehending arrest. When any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offense. Any person has reason to believe, कोई कारण है, बिना कारण के unnecessary fear anxiety नहीं, has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offense. तो offense कौन सा होना चाहिए? Non-bailable. He may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section, and the court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest, he shall be released on bail. क्या बोला उन्होंने? He shall not be arrested? No. They have said if he is arrested, he shall be released on bail. Effectively, non-bailable offense gets converted to a bailable offense. ऐसा नहीं है कि आपको अरेस्ट ही नहीं कर सकते. अगर हम आपको अरेस्ट करने जाएंगे और अरेस्ट करेंगे तो अरेस्ट करते ही बेल पर छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव बीन ग्रांटेड एंटिसिपेटरी बेल. क्या समझ आ रहा है? श्योर? आइए सब सेक्शन 2.
when the High Court or the Court of Session makes a direction under subsection 1, it may include such conditions in such directions in the light of the facts of the particular case as it may think fit, including condition that person shall make himself available for interrogation by police officer, person shall not directly indirectly make any inducement, threat or promise, condition that person shall not leave India without the previous permission of the court, conditions may be imposed under subsection 3 of 480. मतलब कोई भी जो रेगुलर कंडीशंस है आपकी, आप वो इंपोज कर सकते हो इवन व्हेन यू आर ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल, कि भारत छोड़ के नहीं जाओगे, इंटरोगेशन में कोऑपरेट करोगे, विटनेसेस को डराओगे धमकाओगे नहीं, लालच नहीं दोगे, समझ रहे हो ये सब चीजें. सबसेक्शन 3, इफ सच पर्सन इज देयर आफ्टर अरेस्टेड विदाउट वारंट, एंटिसिपेटरी बेल मिल गई आपको, उसके बाद अरेस्ट करा गया विदाउट वारंट by an officer in charge of a police station on such accusation and is prepared either at the time of arrest or at any time while in the custody of such officer to give bail. अरेस्ट के टाइम पे या पुलिस स्टेशन पहुंचकर भी अगर आप बेल देने को तैयार हो, he shall be released on bail. And if a magistrate taking cognizance of such offence decides that a warrant should be issued in the first instance against the person, he shall issue a bailable warrant in conformity with the direction of the court under subsection 1. और अगर किसी व्यक्ति को अब आपको लग रहा है एज अ कोर्ट यू थिंक दैट इस व्यक्ति को अरेस्ट करके बुलाना जरूरी है, तो अगर एंटिसिपेटरी बेल मिली हुई है तो पहले आप क्या इशू करोगे? बेलेबल वारंट, देन यू विल इशू अ नॉन बेलेबल. तो फर्स्ट यू शैल इशू अ बेलेबल वारंट. पहली बात तो अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई, मेरी बात ध्यान से सुनो, बैरक कंफ्यूज करती है. अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई एंड इफ यू आर अरेस्टेड, the police officer has to release you on bail. But if the court thinks that this person who has been granted anticipatory bail, if this person has to be arrested and brought to the court, बुलाने पर आप आ नहीं रहे हो तो इसको अरेस्ट करके ही बुला लो. आपको क्या इशू करना है? पहले बेलेबल वारंट, बिकॉज कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट ने उसको क्या दी हुई है? प्री अरेस्ट बेल, एंटिसिपेटरी बेल. तो इसीलिए अरेस्ट होने से पहले तो बेल पे वो छूट ही जाएगा वेरी इजीली अरेस्ट होने के बाद. तो इसीलिए आप क्या इशू करोगे? बेलेबल वारंट.